Welcome to my class, student. It's English grammar. This is types of adjectives and this is the introductory session and this is session 1. In this we will come to know about adjectives and what are the types of adjectives. Let's start the session. Now first we will come to know about what is an adjective. Adjective कहते किसे हैं? An adjective is a describing word used with a noun to tell something more about the noun. Adjective कहते किसे हैं? Any word that describes noun, कोई भी शब्द जो noun को describe करता है वो adjective कहलाता है और इसीलिए this is called a describing word. Example, Tisha is a good dancer. Here good is what? Says describing the girl Tisha and how is she? She is a very good dancer. So good is your describing word. So here we are seeing adjective tells more about the noun and Tisha is a proper noun and we are knowing more about the proper noun. So we are using the word good and this is an adjective. Now its main function is to modify a noun. तो एडजेक्टिव का मेन फंक्शन क्या है? नाउन को मॉडिफाई करना और अ प्रोनाउन. जैसे यहाँ टिशा चूंकि गर्ल है तो इसकी जगह शी भी अगर हम लिखेंगे तो शी इज अ प्रोनाउन, तो शी प्रोनाउन है तो उसको भी जो एडजेक्टिव है वो मॉडिफाई करता है सो दैट इट विल बिकम मोर स्पेसिफिक एंड इंटरेस्टिंग. आपको पता है when we are talking about boys we use the pronoun he and when we are talking about girls we use the pronoun she. तो ये जो एडजेक्टिव है वो प्रोनाउन एंड नाउन को मोर स्पेसिफिक एंड इंटरेस्टिंग भी बनाता है बाय adding some more information about the noun and pronoun. Now an adjective usually comes before the noun, right? It describes. It is called attributive adjective. तो जो एडजेक्टिव्स नाउन के पहले आते हैं उनको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ रेड कार. कार कैसी है? रेड कलर की है. ग्रीन ट्री. ट्री कैसा है? ग्रीन है. तो यहाँ अ बल्की एनिमल. एनिमल कैसा है? बल्की है. तो इस तरह से हम देख रहे हैं नाउन. आपको पता है कार एक कॉमन नाउन है. कॉमन नाउन के पहले जो हमने वर्ड लगाया दैट इज रेड एंड दिस इज एन एडजेक्टिव. और यहाँ एनिमल आपको पता है दैट इज ऑल्सो कॉमन नाउन ग्रुप. एंड हियर बल्की एनिमल. हियर बल्की इज अ वर्ड दैट इज डिस्क्राइबिंग द एनिमल. नाउ an adjective is a part of speech. Always remember part of speech है adjective that describes. आपको जैसे पहले स्लाइड में बताया वो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को. आइडेंटिफाइज भी करते हैं कौन सा नाउन, कौन सा प्रोनाउन. तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम उस नाउन को देते हैं तो वी कैन आइडेंटिफाई ओके दैट पर्सन, ओके दैट गर्ल. तो इन दैट वे द नाउन आइडेंटिफाइज, एडजेक्टिव आइडेंटिफाइज and quantifies. It quantifies also a noun or pronoun and it is thus a describing word. So why it is called a describing word? These are the reasons for that we call adjective and describing word. So there are two main categories of adjectives. Broadly we can divide adjectives into two main categories. First is determining adjectives, right? And second is descriptive adjectives. तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स में क्या क्या आते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स में आते हैं क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स या क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स. तो आपने देखा यहाँ दो ब्रॉड कैटेगरी है और इस बी का ये 1 और ये 2. तो इस तरह से टू ब्रॉड कैटेगरीज में जो सेकेंड है उसके दो मोर कैटेगरीज हैं. नाउ determining or limiting adjectives. Now determining adjectives, that is a category A. These belong to the family of determiners. Now determiners, you know determiners and they are notably possessive adjectives. तो जितने भी determiners है जब हम उन्हें यूज करते हैं तो वो determining adjectives कहलाते हैं. जैसे possessive adjectives में आप देख रहे हो my, their. तो my book, right? Their home. तो आप जब possessive adjectives को यूज करते हो तो ये determining adjectives के अंतर्गत आता है. Next is numerals and quantifiers such as 1, 2, 3. जब हम numbers बोलते हैं every, each. तो जब हम quantifiers और numerals बोलते हैं तो that comes also under determining adjectives and these are also adjectives.
नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जब हम दिखाते हैं, व्हेन वी शो समथिंग सच एज दिस और दैट, आप यहाँ देख रहे हो दिस और दैट, दे कम अंडर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ आप देख रहे हो ये जो सारे जो वर्ड्स हैं ये सभी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं। Next is interrogative adjectives. They also come under determining adjectives such as which. Adjectives that are used to describe the nature of a subject. Subject कौन हो सकते हैं? Noun, pronoun, और showing the kind or quality of nouns. किस तरह के हैं और क्या उनकी quality है. Nouns or pronouns are called adjectives of quality or descriptive adjectives. Now here comes the B1. First A1 we have done, that is the determining adjectives, and now comes the descriptive adjective. Descriptive means वो ज्यादा describe करते हैं. क्या describe करते हैं? वो kind बताते हैं, quality बताते हैं, nature बताते हैं. Now these describe the permanent or perceived qualities of a noun. So these describe the permanent and perceived qualities that you can see. Perceived qualities that can be perceived, and that qualities of a noun, these descriptive adjectives explain या show. Now there are two categories of descriptive adjectives, जैसे कि मैंने first slide में आपको बताया था. First is qualificative or qualifying adjectives. See, it's very important to learn the heading of the categories. It's very important because now once you are growing up and doing the grammar lectures, so you will have to understand the terminology of each and every topic. So here qualifying adjectives, you cannot say any type of adjectives. Now you are matured enough, you know what are the qualifying adjectives. Once you start learning like this, it will be easier for you to understand which word comes to which कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव्स. सो प्लीज ये जितने भी आपको हेडिंग के जितने भी हेडिंग्स हैं इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हेडिंग में ही आपको उनका डिस्क्रिप्शन छुपा हुआ मिलता है ना. क्वालिफाइंग मीन्स जो क्वालिफाई करता है, सच एज बिग, बिग हाउस, बिग रूम, नाइस, नाइस बॉय, नाइस गर्ल. कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है, ज्यादातर प्रॉब्लम्स होते हैं, सवाल होते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड. तो इस तरह से वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनका नेचर काइंड बता रहे हैं. तो विच एक्सप्रेसेस द पासिंग और परसीव्ड क्वालिटीज ऑफ अ नाउन. तो ये जो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स हैं वो पासिंग क्वालिटी को बताते हैं या परसीव्ड क्वालिटीज. परसीव्ड क्वालिटीज तो पता ही है, जो दिख रहा है परसीव्ड क्वालिटीज ऑफ नाउन, बट इट इज अ पासिंग. तो वो जो है फेज जो है वो बिग, वो नाइस, नाइस पर्सन कैन बी वर्स समटाइम्स. सो ये क्या है, पासिंग है, इट डजंट रिमेन एज द सेम. तो दीज शोज पासिंग और परसीव्ड क्वालिटीज ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. नाउ सेकेंड इज क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स इंक्लूडिंग एब्सोल्यूट एडजेक्टिव. एब्सोल्यूट एडजेक्टिव मतलब वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो जो प्रकार है नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता है, दैट कैन नेवर बी चेंज्ड. सच एज मैरिड, अ मैरिड पर्सन इज मैरिड पर्सन. ये ऐसा नहीं होता, उनमें डिग्री नहीं होता कि लेस और मोर. तो ये पासिंग नहीं है, ये परमानेंट आप उसका स्टेटस बता रहे हो. देन यूनिक, डेड, डेड जो है मोर डेड, लेस डेड नहीं होता, ये एक परमानेंट क्वालिटी है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है. तो दिस इज क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स और एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स. नाउ दीज शोज द परमानेंट क्वालिटीज और एब्सोल्यूट्स. इट्स नॉट पासिंग, these are the permanent qualities or absolute. See, all these things you will have to remember. Qualifying adjectives are gradable. Qualifying adjectives कौन से थे, पहले वाले जो कि पासिंग थे, क्योंकि हम अपने हम उनको ग्रेड दे सकते हैं. वो नाइस है, वो नाइसर है, वो नाइसेस्ट है, वो गुड है, वो बेटर है, वो बेस्ट है. लेकिन जो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स है आप उनको ग्रेड नहीं दे सकते, राइट? Now it is possible to graduate their intensity by the addition of an adverb or degree
सच एज वेरी, क्वाइट इनफ, और एडवर्ब डिग्री के साथ भी हम उनको ग्रेड दे सकते हैं. वेरी नाइस, इनफ स्पेस, अंडरस्टूड. क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ठीक है, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. तो किसी को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, किसी को वही सम इजी लगता है. तो ये क्या पासिंग है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है. तो इसको हम ग्रेड में बता सकते हैं. नाउ कैन ऑल्सो बी पुट इनटू कंपेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म. तो ये जो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स है इनको हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में भी डाल सकते हैं. जैसे कि मैंने कहा, अगर 3 बच्चे हैं, 3 कोई है जिनको आपको कंपेयर करना, उनकी क्वालिटीज को बताना है, तो ही इज गुड, बेटर एंड बेस्ट. तो इस तरह से हम सबको एक डिग्री दे सकते हैं, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव. नाउ बिग, बिगर, बिगेस्ट. उसका घर बड़ा है तो उसका घर उससे बड़ा है, उसका घर सबसे बड़ा है. तो ये बिग, बिगर, बिगेस्ट. तो इस तरह से हम उनको डिग्रीज भी दे सकते हैं, जिसको डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं. नाउ क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स कैन नॉट नॉर्मली बी ग्रेडेड. लेकिन जो एब्सोल्यूट है, जो मैरिड, डेड, जो एब्सोल्यूट परमानेंट क्वालिटीज है, आप उनको ग्रेड नहीं कर सकते. अ पर्सन इज ईदर मैरिड और नॉट. ही और शी कैन नॉट बी वेरी मैरिड. आप उसको वेरी मैरिड, इनफ मैरिड नहीं कह सकते. तो वो एक एब्सोल्यूट, उसको उसकी एक पहचान है. नेक्स्ट, कोई डेड है तो डेड, मोर डेड, लेस डेड हम नहीं कह सकते. डेड इज ए एब्सोल्यूट quality that another person, at least not under normal uses of the word. तो हम लोग नॉर्मल यूज में कभी भी मोर डेड, लेस डेड नहीं कहते हैं. नाउ फर्दर कैटेगराइजेशन क्या है? सिंपल डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. इट कन्वेज अ ट्रेट और क्वालिटी ऑफ द नाउन. किसी भी नाउन के सिर्फ ट्रेट या क्वालिटी को बताने को हम सिंपल एडजेक्टिव्स कहते हैं. जैसे इंटेलिजेंट, लेजी, रेड, ब्लू, ग्रीन. These are all adjectives and these are qualifying noun or pronoun, and these are only conveying a trait or quality of the noun. Next is proper descriptive adjectives. These are derived from the proper nouns and always used in capital form. It is used to describe nouns related to regions, countries, religions, etc. होता है ना, मेरा एक आसामी फ्रेंड है, तो आसामी क्या हो गया, ये आपने प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव वर्ड यूज किया. दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. आसाम प्रॉपर नाउन है. तो जब आपने आसाम से आसामीज बनाया तो वो प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव आपका एडजेक्टिव हो गया. तो ये हमेशा क्या करेंगे, कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे. जैसे हिंदू, मुस्लिम, इंग्लिश, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, ग्रीक, रोमन, कैथोलिक, टर्किश, अमेरिकन, अफ्रीकन, बर्मीज, इटालियन, ये सब प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव्स हैं. तो इसीलिए इनको हम प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स कहेंगे. नेक्स्ट इज कंपाउंड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. तो व्हाट आर द कंपाउंड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स? दैट इज शॉर्ट टेम्पर्ड. आप देख रहे हो दो वर्ड है एक साथ, हाइफन के साथ. सेल्फ सेंटर्ड, वेल बीइंग, हेवी हैंडेड, श्योर फुटेड, ब्रोकन हार्ट, थ्री हेडेड, होल हार्टेड, एक्सेट्रा. एडजेक्टिव्स फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर आल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. तो आपने पहले देखा प्रॉपर नाउन, वो भी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी ही कहलाते हैं. तो क्वालिटीज दैट एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब अपीयरेंस ऑफ नाउन, जैसे एडोरेबल, अट्रैक्टिव. देन पर्सनालिटी ऑफ नाउन, जैसे अग्रेसिव, एम्बिशियस, अम्यूज. कलर ऑफ नाउन, एक्वा, ब्लैक, व्हाइट. फीलिंग्स ऑफ नाउन, अफ्रेड, एंग्री, एंग्सियस. शेप ऑफ नाउन, ब्रॉड, crooked, circular. Then size of noun, big, large. Taste of noun, salty, hot, icy. Time of noun, ancient, modern, brief. Quantity of noun, abundant, considerable, few, extra. Then sound of noun, blaring, cooing, loud. And then touch of noun, जैसे rough, smooth. So these are all adjectives. So what have you learned today? We have learned types of adjectives. In the next class, I shall teach you something more interesting about adjectives. Till then, just have a good revision of this session. We'll meet you again in the next session. Thank you.